Hello, everyone, and welcome to yet another episode of the Fair Unfair Life podcast. मैं हूं कृति, मेरे साथ है मोनिका और हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी सोल जिनका नाम है आंचल। वेल, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, राइट? एंड किसी भी समय हो जाता है। यदि आप 50 साल के हैं, यदि आप 30 साल के हैं, 20 साल के हैं, कई बार ढूंढने जाओ तो मिलता भी नहीं है, वो एक अलग प्रॉब्लम है, बट उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। बट आज हम बात करेंगे कि एक तो प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार हमें कभी भी हो सकता है। तो आंचल एक एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बेटी है। शी इज लाइक अ डॉटर टू अस एंड शी इज हियर टू स्पीक अबाउट something truly that impacts a lot of people in their life, in their love journey, which is long distance relationships. Um, So, without losing a lot, I think we want to welcome Anchal to the stage. And hi, Anchal, how are you feeling today? Hello, really feeling good today. Had a really good sleep, good day, and yeah, the weekend looks amazing. The further. Great, great. Yes. And and you did tell me a little bit about your interests. I know that you've just completed your 12th standard and you're now looking to get into further studies or AI, computer science, programming. आपको बहुत पसंद है. Hmm. Yes. I'm Right. like yes. So I just completed my 12th, and I was like PCM as a major subject, physics, chemistry, and maths, and also bifocal as electronics. And right now choosing like deciding to pursue my career in engineering and AI, and I'm more inclined towards computer languages. And yeah, I mean, and also I feel that AI is really as a upcoming future for like most of the industry, Yeah. IT, medical, healthcare, and so on. So yes. Absolutely. I mean, from somebody who is in the IT industry, I can tell you that it's a really good thinking process, and all the very best to you for your future. Yes. Thank But you. jump karte hain, and I just want to know. Let's start somewhere metaphorically. So, what is love metaphorically for you? Okay, so if I say love cannot be defined because love प्यार एक बहुत बड़ी शब्द है। ऐसा उसके लिए कोई आज तक डिक्शनरी में प्रॉपर मीनिंग नहीं होगी या कोई इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता बिकॉज सबके लिए लव इज डिफरेंट। मेरे लिए होगा एक किसी के साथ डेट पे जाना, मीठी बातें करना, and words of affirmation, and then acts of services. If I receive, I will be happy. But for other people like not my age, maybe who are in late 20s or nearing 30s, उनके लिए एक just watching Netflix at home with a slice of pizza होगा. So ऐसे सबके लिए love different होता है. But for me right now, being in a relationship of almost 3 years, मुझे love का I mean love तभी काम करता है जब रिलेशनशिप लाइक जब दो साइड से एफर्ट्स म्यूचुअली डाली जाती है, जब ट्रस्ट होता है, एंड व्हेन यू कम्युनिकेट एवरी स्मॉल थिंग व्हिच इज बॉदरिंग योर पार्टनर और यू, एंड ऐसे ही आगे बढ़ती है रिलेशनशिप. एंड इवन इफ यू गेट स्टक इन स्टार्ट, यू स्टिल हैव बिकॉज फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड बी ऑनेस्ट, हमारी स्टार्ट में बहुत दिक्कत आई थी. एंड उसके बाद we really felt that the relationship is not gonna work, it will fall out. But then obviously दोनों को वो अंदर से शिद्दत थी एक दूसरे के लिए कि yes, we wanna do this, we wanna make this happen. So we overcome that situation, that circumstances एक दूसरे के साथ, and उसको मतलब एक एक दिन प्रोसेस करते हुए, बात करते हुए it happened. And ऐसे yes, I mean love बहुत ही बड़ी शब्द है. But mere liye it's, as I said again, I will say again that love works when efforts are mutually, and even when your partner don't want to give you on you, give up on you. Sorry.
Yes. Yeah. I mean, I totally agree. There's You've kind of nailed it. It's so difficult to define love. Love dosti hai, Shahrukh Khan ne kaha tha, but I don't know. I got into an arranged marriage, तो मेरी तो कोई दोस्ती नहीं थी, but हमारी दोस्ती love के बाद हुई. Hmm. So I think it's very difficult to define love. Monica, you want to add something? I want to say, and I want to like kind of first of all admire her definition of love. She's so clear, and मेरे ख्याल में इतनी क्लैरिटी प्यार के बारे में तो शायद बड़ों को भी नहीं आ पाती है. तो जो लोग सुन रहे हैं वो थोड़ा सुन लें कि एक छोटा सा बच्चा भी हम लोग को बता सकता है कि प्यार क्या होता है. और जिस तरीके से उसने बोला कि प्यार में उसके लिए प्यार की परिभाषा एक दूसरे को समझना है और एक दूसरे के साथ मुश्किलों में भी रह के कैसे आप प्यार के साथ आगे बढ़ जाते हैं. In spite of you knowing that, you know, at times it's just not going to work for you, but still that love actually pushes you to make things work. And ये मैं आंचल से भी समझ रही हूँ. It's such a beautiful thought. तो आंचल ये मुझे समझाने की कोशिश करें, हमें बताएं कि ये मोहब्बत शुरू कहाँ से हुई? So our love story was very random. बहुत मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी होगा. So it was 2022 and it was not a random day. I was at my nanny's place and उस दिन नवरात्रि के दिन चालू थे. And as such मेरा उस दिन कुछ प्लान नहीं था. But then I get a call from one of my long lost friends and उसने मुझे बस ऐसे ही बुलाया कि तू आएगी क्या? We are here playing Garba, so you can join us. So I was like, okay. Then when I went there, मुझे बहुत लोग देखे, मतलब उसकी बहुत ग्रुप बड़ी थी. There were like 20-30 people. So I was really confused, and I was really introvert and shy to get involved with them and play. But then he introduced me to everyone, and मुझे एक जो आज मैं जिसके साथ हूँ, he is Akshat basically. And जब उसने मुझे उससे मिलाया, तब the moment I shook hands with him when I was meeting everyone, and instantly when I shook hands with him, I was like, yes, this is. मुझे वो हार्ट में मेरे कुछ फील हुआ. एंड मुझे ऐसी फीलिंग कभी भी for anyone कभी नहीं आई है. I mean, not a guy, obviously. So I was like, this is something very strange that happened to me right now. And I was still processing and thinking, ठीक है, कुछ होगा, जाने दो. But then later on, when we were going out of that society and going to other place, then there was this girl, हमारे ग्रुप में से ही थी. तो उसने मुझे पूछा, बहुत लड़के थे वहां पे ना. तो उसने मुझे पूछा, इन सब में से तुझे कौन सबसे बड़ा पसंद है? And I very randomly thinking nothing, I pointed towards Akshat. And पहले कभी अगर मुझे ऐसा कोई मुझे पहले पूछता 1 साल पहले, मैं जवाब क्या, मैं उसको acknowledge भी नहीं करती वो क्वेश्चन को. तो इस बार मैंने पता नहीं क्या मेरे अंदर guts है, क्या हुआ, I just pointed out towards him. And luckily, fortunately or unfortunately, I don't know, he saw me doing that from his side eye. वो मेरे आगे था खैर, but उसने मुझे देख लिया मेरे side eye, उसके side eye से. Then वो हो गया. उसके बाद we had to take auto to go to another place. So and मैं किसी को वहाँ पे जाने नहीं थी except 2-3 people. So the 2-3 people already left me. पता नहीं, not ऐसा intentionally, but वो लोग चले गए दूसरे ऑटो में, एंड मैं रह गई थी अकेले. So there was this one ऑटो अक्षत की, एंड अक्षत के 2 फ्रेंड्स थे. उसमें से एक सोम था और एक और कोई था. तो वो लोग 3 बैठ चुके थे. बट देन आई हैड टू आस्क देम कि कैन आई आल्सो कम विथ यू ऑल, बिकॉज बाकी कोई है नहीं. तो देन these two friends literally made a face and ऐसा बोले कि यार, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, यार नहीं यार हमें जाना है. But then अक्षर said no हाँ ठीक है तू आजा बैठ जा. एंड उसको एक अक्षर के 2 दोस्तों में से एक को ड्राइवर के साथ आगे बिठाया और फिर मुझे साथ में लिया, मुझे लिया अक्षर ने उसके बाजू. तो मैंने बोला यार ये तो कुछ और अजीब हो गया. फिर हम
गए, फिर हम इतने मतलब ऑटो में ही हम इतने नॉर्मली बात करने लगे एज इफ वी नो ईच अदर फ्रॉम लाइक पहले से, वी नो दैट वी फ्रेंड्स। हम बहुत ओपन अप हो गए, पता नहीं कैसे। हम उसकी स्कूल की बातें कर रहे थे बिकॉज आई न्यू people from a school. He knew people जो मेरे mutuals है, he knew that. So we were normally talking, and then when we reached the other place, we got down, and then he came to me and asked, "Oh, can I please get your Insta ID?" And तब मेरे पास Insta था नहीं, like मैंने deactivate करा था, मेरा course चल रहे थे तभी। तो उसके बाद फिर मैंने उसको दे दिया और मैंने बोला कि नहीं, मैं अभी तो तेरा एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, आई विल डू इट लेटर। तो फिर उसके बाद ही वाज लाइक ओके। देन हम अंदर गए, उसको गरबा खेलना नहीं आता था, तो मुझसे वो फ्लर्ट करने लग गया। मुझसे बोल रहा था, तो मुझे प्लीज गरबा सिखाएगी क्या? तो मैं फिर एंड ऐसा गर्ल्स का होता है थोड़ा भाव खाना, एकदम इंस्टेंटली हाँ कुछ नहीं बोल देना फर्स्ट स्टेज पे मतलब गाइस। मैं क्यों सिखाऊं तुझे या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रियली रिमेम्बर। बट देन उसने बोला मुझे नहीं सिखाएगी तू, तो इवन ही न्यू दैट आई हैड समथिंग समथिंग फॉर हिम, बट ऑब्वियस नहीं करा था हमने। तो फिर मैंने उसको सिखाया, मेरे से 2-3 दिन मिले, हमने गरबा खेला। तर ऑन द थर्ड डे, लाइक इट वाज सेकंड लास्ट डे, एंड वो पूरे टाइम नहीं था, लाइक द हिज ग्रुप वाज देयर बट ही वाज नॉट देयर। सम पीपल वर देयर, समवन वाज देयर। ओके। तो उसका क्लोज फ्रेंड है, मैंने उसको जाके पूछा कि यार अक्षत कहाँ है? तो उसने सीधा मेरे फोन से कॉल लगा दिया, जबकि आई डिडंट इवन हैव हिज नंबर। आई डिडंट इवन टॉक टू लाइक यस वी वर टॉकिंग ऑन इंस्टाग्राम, हमने तब तक बात करना स्टार्ट कर दी थी, बट एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज नहीं करा था। हाँ, तो ये हुआ। उसके बाद ये एक उसके फ्रेंड ने सीधा मेरे फोन से कॉल लगा दिया उसको। मैंने बोला यार ये क्या कर दिया तूने, सीधा कॉल, मतलब मुझे ऐसा किया। फिर लड़की सामने से आ रही है, व्हाट इफ मेरा पोपट हो जाए, मैं रिजेक्ट हो जाऊं, वो सब मुझे फियर था। तो फिर उसने बोला नहीं, जो उसके फ्रेंड ने बोला मेरे फोन में तो बैटरी नहीं है, तुझे अपने फोन से ही करना पड़ेगा, जबकि उसके फोन में 10% था और 10% से कॉल नहीं लगता, ऐसा हो सकता है? तो फिर उसने मेरे फोन से उठानी, बिकॉज इट वाज अन अननोन नंबर। देन अगेन हिज फ्रेंड कॉल्ड हिम फ्रॉम माय फोन, तब जाके उसने उठाया और उसने बोला हाँ कौन। बट देन ही लाइक हिज फ्रेंड ओनली टॉक्ड एंड सेड आंचल तुझे मिस कर रही है, जल्दी आ जा। एंड उसके बाद ही वाज ऑन अ पार्टी, एक्चुअली सोम का ही बर्थडे था, मुझे पता नहीं था। तो वो लोग आए एंड वो जल्दी जल्दी भाग के अकेला ऑटो में आया मेरे लिए। 11 बज चुके थे, बट मुझे 11 घर जाना होता था। तो फिर भी वो आया, मुझे 15 मिनट मिला, एंड देन आई वेंट होम। एंड लास्ट डे था, ठीक है। ओके। फिर हमने बोला कि हमने फिर आज ऑफिशियली एक दूसरे को पूछा कि आज मिलते हैं, लेट्स गो एंड प्ले टुगेदर, मतलब। तो फिर उसने मुझे बोला कि हाँ ठीक है। एंड हम सबका प्लान बना था कहीं एक स्पॉट पे मिलने, बट वो मुझे इतना स्पॉट फेमिलियर नहीं था। तो मैंने उसको बोला ब्रो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, आई डोंट नो वेयर टू कम, कैन यू प्लीज सेंड योर लोकेशन या कुछ, मतलब मुझे बस बता देना कहाँ पे आना है, कॉल पे आई विल कम। उसने बोला अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं तुझे फिर कहीं हम साथ में ही जाते हैं, मैं तुझे बीच में कहीं मिल जाता हूँ जहाँ तुझे पता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं उसको एक जगह मिली, हम वहां से साथ में गए। तभी उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, बहुत अच्छी लग रही है ये वो। एंड देन उसके बाद हाँ, बस हम उस दिन एक्चुअली सब बिछड़ गए थे, सब ग्रुप में 20 लोग अभी सब पता नहीं कहाँ चले गए थे। सो वी टू वर ओनली लेफ्ट, एंड हम दोनों को ही बाकी का पूरा टाइम निकालना पड़ा। तो हम एक ऑटो में सबसे पहले टाइम तभी हमने एक दूसरे को हक करा, फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ा। फिर उसके बाद फिर हम वापस उसकी बिल्डिंग गए, बिकॉज इवेंचुअली एवरीवन वाज देयर ओनली, लाइक लेटर वी गॉट टू नो सब वहीं पर है। तो हम वो बिल्डिंग गए, एंड फिर आधा एक घंटा हो गया, देन ही वाज प्लानिंग टू कन्फेस मी, बट हिज फ्रेंड्स वर टेलिंग कि ये बहुत जल्द, हमें 4 दिन हो गए थे मिलकर, एंड 4 दिन में ही कन्फेसेस मी। तो ऑब्वियसली लड़की को तो लगेगा कि भाई क्या है, व्हाट इज ही अप टू एंड ऑल दैट। बट देन उसके फ्रेंड्स ने तो उसको बोला कि नहीं नहीं, दे वर लाइक टेलिंग हिम नो, बट ही कुडंट रेजिस्ट हिमसेल्फ। उसने बोला रिजेक्ट हो जाऊंगा तो अभी होना है, वरना फिर हो जाएगा ये।
तो वो गया एंड ही कॉल्ड मी, आंसर सुनना, मुझे तुझसे 2 मिनट बात करनी है। मैं समझ गई ये बात क्या होने वाली है। तो फिर ये लड़कियों का इंस्टिंक्ट है, ये फीमेल इंस्टिंक्ट अरे है। सीरियसली literally imagine everything in that 1 second, 1 sentence of what he told. फिर उसने मुझे बोला कि मुझे तुझे एक बात बोलनी है। मैंने बोला बता। तो उसने बोला कि आई रियली लाइक यू। मैंने बोला ओके। फिर वैसे उसने कन्फेस किया, मैंने भी बोला, बट देन आई वाज नॉट कंप्लीटली रेडी फॉर अ कमिटेड रिलेशनशिप। तो मैंने उसको बोला लेट्स टेक टाइम, लेट्स गिव मोर टाइम टू ईच अदर, टू नो ईच अदर। थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर समझेगा हमें कैसा है, हमारी जम रही है नहीं जम रही है। फिर ऐसे हमने 2 महीना निकाला साथ में एंड देन आई टोल्ड हिम यस एंड तब से वी आर टुगेदर। How sweet, that's sweet. स्वीट 2 सीरियसली महीने भी पता है कैसे थे ना, ऐसा मतलब हम रोज मिलते थे हम्म एंड पूरे फ्रेंड मतलब तभी फिर 5-6 फ्रेंड जो सबके क्लोज थे उसके साथ हम रहते थे। पर वो फ्रेंड्स के सामने भी हम इतना मतलब क्लोज रहते थे, अपने में रहते थे। तो वो लोग ने भी हमें एक बार पे बोल दिया कि अभी तुम लोग बन ही जाओ यार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तुम बस टैग एक नहीं दे रहे हो रिलेशनशिप का, वरना तुम दिखते ही वैसे हो। तो वो सब देखकर हमने फिर बोला कि चलो ठीक है, इट्स टाइम टू एक्चुअली बी देयर। तो आंचल, ये तुम्हारा रिलेशनशिप अभी कितने सालों का हो गया है? अभी टू बी प्रिसाइज 2.8। तो 2.8 में कितना टाइम साथ में रहे और कितना टाइम अभी आप अलग हो? क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस डिस्टेंस पे पे। या ओके। सो हम 2 इयर्स शॉर्ट डिस्टेंस पर थे। ओके। एकदम मतलब एक ही एरिया पे रहते थे। बहुत आना जाना होता था, रोज ऑलमोस्ट मिलते थे। बट देन अचानक आई गॉट टू नो दैट ही इज शिफ्टिंग। इवन ही वाज नॉट रेडी फॉर दिस मूवमेंट बिकॉज उसको भी नहीं पता था राइट। कि ये क्या मतलब कि मैं कभी शिफ्ट होऊंगा एंड हमारा लॉन्ग डिस्टेंस होगा। बट देन उसके डैड का बिजनेस शिफ्ट हुआ, तो इवन ही हैड टू शिफ्ट। एंड देन जब उसने मुझे बताया कि हाँ आई हैव टू शिफ्ट, इट इज टाइम टू एक्चुअली गो, राइट। तब इट वाज रियली हार्ड टू बिलीव कि ओ माय गॉड ही इज गोइंग। हमने बहुत तरीके भी करे कि नहीं यार इधर रहते हैं, मतलब उसके मॉम डैड को कन्विंस करना कि नहीं यार इधर ही रह, तू मत जा। पर अभी ऑब्वियसली मॉम डैड है, नहीं माने, तो फिर हमें करना पड़ा। एंड हाँ 2 साल हो गया शॉर्ट डिस्टेंस में और अभी 1 साल लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। कृति, पहली बात तो इनकी लव स्टोरी इतनी क्यूट है। Oh my बहुत ही God. प्यार फिल्मी लव स्टोरी। कि उसको एक एक है ना, एक एक इवेंट ऐसे ऐसे याद है, इतना दिन हो गया, फिर ये हुआ, फिर ऐसे बैठे। How और cute. हम लोग उसको डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे थे बिकॉज वो इतना एंजॉय कर रही थी बात करते वक्त, यू नो, एज इफ शी वाज एक्चुअली लिविंग दोस मोमेंट्स। तो आंचल, तुम ऑलमोस्ट 2 साल तुम एक साथ रहे एंड उसके बाद अचानक से ये बम फटा कि अब तो ये जाने वाले हैं। तो तब तब क्या चला दिल में, दिमाग में क्या क्या लग रहा था? बिकॉज मेरे ख्याल में उस वक्त तुम भी 12th कर रहे थे। नहीं, 12th तुमने अभी I किया। was in 11th. 11th, राइट। Yeah, 11th? No, I was in 12th only. अच्छा, 12th हाँ, पढ़ाई शुरू हो हाँ, गई थी start हो तुम्हारी। गई थी, राइट yes, राइट yes, राइट। yes. तो कैसा कैसा फील किया जब ये न्यूज ब्रेक हाँ, हुई? तब बहुत आंसू आए, ऐसा लगा अरे यार अब तो पता नहीं रिलेशनशिप बचेगा नहीं बचेगा। बिकॉज आजकल जेनजी में इवन यू ऑल नो कि बहुत मतलब प्यार के नाम पे लोग बहुत कुछ टाइम पास करते हैं। आई वुड नॉट से व्हाट एंड ऑल, सबका अलग अलग होता है, बट they just sometimes people most of the people in our generation are not serious, they just feel कि मतलब प्यार बस एक लस्ट है या what. So मुझे भी ऐसा 2 मिनट के लिए हो गया था कि what if अब कुछ हो जाए, वो ओवर थिंकिंग नेचुरली बढ़ जाती है। ऐसा फील होने लगता है कि अब तो यार बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा, अब तो हर एक चीज सोच समझ कर करनी पड़ेगी। एंड व्हाट इफ हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पाए, व्हाट इफ वो झूठ बोल रहा हूँ उसे बट मुझे कैसे पता चलेगा, ये सब। बट देन ये सब थॉट्स बहुत नेगेटिव थॉट्स आए, वोंट डिनाई। पर देन इवन ऑन द अदर साइड ऑफ माई माइंड आई न्यू दैट ही इज अक्षराथ, हम 2 साल से साथ में हैं। तो बिकॉज जो 2 साल मैंने उसकी आंखों में देखा, मेरे लिए जो फीलिंग्स और प्यार था उसको, तो वो मुझे एक पता चला था कि नहीं, देयर इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो और फेल ना हो। ओके। तो
बस वैसे हमने एक दूसरे को साथ दिया, पॉजिटिव रहे, एंड वी थॉट कि इफ वी कम्युनिकेट डेली, if we just speak out, if we are not liking something about each other, we will speak to each other, and वैसे communicate करके हो जाएगा. नहीं हुआ तो देखेंगे क्या करना है. But give up was not really an option for us because हमारा like second month of the relationship से बहुत ये हो गया था, मतलब ऊपर नीचे. तो तभी भी प्रॉब्लम्स बहुत आई थी, एंड तभी तो ऐसा हो गया था कि बस जब सेकंड मंथ हो गया था हमें, तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी. एक्चुअली मेरे घर पे पता चल गया था अबाउट अक्षर. So my mom and dad were not really okay with me dating and committing to a guy at this early stage of my life. And उसके वजह से मुझे बहुत restrictions आ गए थे अक्षत के नाम से. I couldn't say his name at my home. I couldn't, roam with him freely in my area. हमें बहुत छुप छुप कर मिलना पड़ता था. बहुत सारी ऐसा हुआ. एंड दूसरे रिलेशनशिप को देख के यार, ये लोग तो कितने फ्री है, ये लोग तो कितने मजे से घूम रहे हैं, काश हम भी घूम पाते. Yeah. वो तो बहुत हुआ, पर एंड बहुत ज्यादा हुआ, मतलब इट वाज नॉट इजी. पर फिर अगेन आई सेड कि तभी भी हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा. एंड वी जस्ट लाइक इट जस्ट हैपेंड ऑल विद अ फ्लो. मतलब ऐसा प्लानिंग नहीं था कि अभी नहीं, अभी हमें कॉशियस रहना है, अभी हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तब जाके चीजें ठीक होगी. ऐसा नहीं था, मतलब वो फ्लो से खुद ही ठीक हो गया. प्रॉब्लम्स हुई, बहुत रोना धोना था, बहुत सैडनेस थी दोनों के अंदर, पर ठीक है, हो गया इवेंचुअली. एंड इवन राइट नाउ, जैसे मैंने बोला, लॉन्ग डिस्टेंस के पहले नेगेटिव थॉट्स भी थे, पर अभी पॉजिटिव थॉट्स भी आए, बिकॉज आई न्यू दैट ही इज विथ मी सिंस 2 years, पर ऐसे नहीं करेगा. मतलब कहीं ना कहीं वो था फीलिंग कि ऐसा नहीं होगा. कृति, मेरे दिमाग में तो 1000 सवाल आ रहे हैं. तुम भी पूछ लो, बिकॉज प्यार का बात प्यार की है. आई एम श्योर तुम्हारे दिमाग में भी काफी सवाल चल रहे होंगे. प्लीज गो अहेड एंड आस्क समथिंग. I think सबसे पहले तो it seems like you building something really great out there, Anchal. I love how you're really walking us through all of this, because easy नहीं होता है. एंड जब तुमने वो छोटे छोटे मोमेंट्स पहले ही लाइफ में डिस्कवर किए कि अर्ली इन द रिलेशनशिप यू वर हैविंग दोज, इट सीम्स दैट इट्स एन ओपन रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ कि आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो एक दूसरे को. देयर इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन दैट रिलेशनशिप. देयर आर थिंग्स जो कि एक अच्छा फाउंडेशन ले करते हैं. एक ट्रस्ट जो आपने स्टार्टिंग में भी बोला, एंड इट सीम्स दैट यू ट्रस्ट हिम कि वो इतनी दूर भी है तो भी तुम्हारा इतना स्ट्रांग है वो रिलेशनशिप कि उसको ब्रेक करने के लिए भी समथिंग मैसिवली वुड हैव टू हैपन, बिकॉज कि तुमने कुछ ऑब्स्टिकल्स साथ में कवर किए. सो which is truly profound, and I was loving listening to that. I think the question then is, why don't you help us talk through कि जब वो चला गया, ठीक है, तो फिर तुम कैसे उससे कम्युनिकेट करते हो? Like what does long distance relationship actually mean to you? Let's put it that way. ओके, सो अभी आई न्यू कि अब दोनों की लाइफ बहुत डिफरेंट होगी. हम साथ रहते थे, मतलब पास रहते थे, तो वी न्यू कि मतलब बहुत कुछ सेम होता था. हमारा फ्रेंड ग्रुप सेम होता था, हमारा कॉलेज टाइमिंग्स लगभग बहुत सेम होता था. तो हम जैसे फ्री हो जाते थे, हम मिलते थे, देन वी यूज्ड टू गो होम, डू आवर वर्क, एंड देन अगेन मीट. मतलब हर दिन का डिफरेंट था, बट ऑलमोस्ट वी यूज्ड टू बी इन द सेम पाथ, सेम लाइन टुगेदर. बट यहाँ पे अभी उसका भी बहुत मतलब वो बहुत फैमिली बाउंड हो गया वहां जाकर. एंड उसकी बहुत बड़ी फैमिली है. ही हैज अ जॉइंट फैमिली. तो मतलब वहां जाके उसको वो सब ऑब्वियसली निभाना पड़ता है, बड़ों के साथ चीजें. तो वो बहुत फैमिली बाउंड हो गया. तो उसके घर हर दिन कुछ ना कुछ फंक्शन या कुछ रिलेटिव्स आते थे या कुछ प्रोग्राम बन जाता था. एंड वो फैमिलीज के साथ बहुत ज्यादा रहने लग गया. एंड हमारी बात वैसे वैसे बहुत कम भी हो गई, वोंट लाई, बट हाँ, बहुत कम्युनिकेट करना हमारा बहुत कम हो गया. एंड फिर बहुत, मतलब ऐसा, मुझे तो तभी ऐसा हो गया कि यार अभी ऐसा हो रहा है हमारे बीच, तो पता नहीं ये तो कब कब तक चलेगा. मतलब फिर तो क्या पता नहीं हो वर्कआउट या कुछ. बट देन उसने मुझे समझाया कि
आजकल मेरे हाथ में भी चीजें नहीं है एंड ऑब्वियसली उसके हाथ में नहीं थी, तो मैं उसको ब्लेम भी नहीं कर सकती थी डायरेक्टली कि यार ये तेरी गलती, तू क्यों कर रहा है। एंड बस वैसे अंडरस्टैंड करा मैंने उसको। अंडरस्टैंड करने में भी मुझे प्रॉब्लम हुई कि यार मतलब अगर इसका रोज ऐसे हो या हर हफ्ते ऐसे सब हो तो मुझे तो मतलब यही हो जाएगा, बिकॉज बात करना एक हफ्ते तक 3-4 दिन तक लॉन्ग डिस्टेंस में तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बस ऐसे ही हमने ये करा कम्युनिकेट। फिर हमने स्टार्टिंग में दिक्कत हुई क्योंकि मैंने बोला वो बहुत बिजी रहता था। फिर उसके बाद जैसे जैसे मतलब टाइम गया, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हिम, थोड़ा पॉजिटिव रही एंड आई started trusting him कि yes he is actually not lying and he's actually saying like he's actually meaning what he say कि थोड़ा टाइम दे, everything will be normal, थोड़ा अभी घर पे मेहमान है, बिकॉज वो नया नया शिफ्ट था तो सबको वहाँ पे ऐसा क्रेज हो गया था कि ओ माय गॉड Excitement हो गई। वहाँ गए हैं। तो उसके मॉम बिल्कुल। डैड इतने टाइम से मिले नहीं थे, they were staying in मुंबई फॉर 16 years, पास्ट 16 years। अब वहां जाके सबको वहां पे भी ऐसा हो गया Adjust था, होना हाँ है। adjust होना, और उनको भी ऐसा एक्साइटमेंट हो गई थी कि अब सब साथ है, पास पास है, तो बहुत मजा आता था। तो वही फिर उसने टाइम दिया, लाइक मैंने टाइम दिया खुद को, उसने भी मुझे समझाया। तो फिर हमारी बात ऐसे होती थी एंड 1-2 महीने हो गए, एवरीथिंग केम टू लाइन अगेन। वी यूज्ड टू स्टार्टेड टॉक वेरी फ्रीक्वेंटली, हर दिन हो जाता था बात एंड सब बताते थे। एंड एज सच ऐसा हमारी वैसी लाइफ नहीं थी कि ऑल्सो लाइक this is very important that you have a very socializing life, like you go to clubs with your friends, you drink, तो भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बट तभी मेरा तो 12th था एंड वो भी उसके भी कुछ एग्जाम्स थे, तो वो भी ये सब नहीं करता था और उसके भी वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स नहीं होते थे, तो बस 1-2 कजिन्स के साथ घूमता था वो। और मेरे भी तभी इतनी सोशल लाइफ नहीं थी बिकॉज मैं भी बहुत ये पढ़ाई में थी, मुझे भी मार्क्स चाहिए थे। तो फिर तभी तो हमने कुछ ऐसा पार्टी वार्टी नहीं करा एंड वो भी एक फैक्टर है कि इफ यू डू ऑल दिस तो भी हो ना हो प्रॉब्लम आती है, लाइक ट्रस्ट इश्यूज आते हैं कि वो ड्रंक होके कुछ गड़बड़ कर रहे हो, मतलब दोनों बाजू हो सकता है। तो आज जो व्हाट आई हियर फ्रॉम यू इज दैट पहली बात तो इनफैक्ट वो मेरी जनरेशन का हो या कृति के हो या तुम्हारी Yes. जनरेशन का हो, जो मेन फैक्टर इन अ रिलेशनशिप है वो है कम्युनिकेशन। एनी Yeah. रिलेशनशिप और जहाँ पे कम्युनिकेशन ही थोड़ा चैलेंजिंग हो जाए तो तुम हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे कि इन लॉन्ग डिस्टेंस क्या जो सबसे जरूरी बात है कि उनको अपने जहन में रखनी है कि जब कम्युनिकेशन ही एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है तो क्या वो ट्रस्ट होना चाहिए सामने वाले के ऊपर या वो अपनी रिलेशनशिप के ऊपर ट्रस्ट और विश्वास होना चाहिए कि ये चलेगा आगे एंड यू शुड नॉट गेट हैसल। क्या तुम बताना चाहोगे एज पर योर एक्सपीरियंस? स्टार्टिंग में मैंने भी बोला बहुत प्रॉब्लम हुई प्रोसेस करने में और वो विश्वास करने में कि ये हो रहा है, अभी वी आर सेपरेटिंग। बट देन भाई खुद को बस पॉजिटिव रखना चाहिए एंड यू शुड एटलीस्ट लाइक गिव टाइम टू योरसेल्फ, टू रिलेशनशिप राइट एंड टू द अदर टू द पार्टनर एज वेल, कि पहले ये हो रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस स्टार्ट तो हो जाए, देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लॉन्ग डिस्टेंस स्टार्ट होने के पहले ही कई लोग ब्रेकअप करके बैठ जाते हैं। काफी लाइक मेरे खुद के 2-3 फ्रेंड्स थे, लाइक अक्षत आल्सो हैज वन ऑफ द फ्रेंड्स जिसका लॉन्ग डिस्टेंस था, उसके पहले ही वो लोग का ब्रेकअप हो गया बिकॉज उनको लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जमता, इसलिए दे सेड कि नहीं भाई लॉन्ग मतलब ये डिस्टेंस नहीं टेस्टिंग कर। वाटर टाइप यस, हो जाता है रियली रियली तो अगर तुमने लॉन्ग डिस्टेंस का पार्ट कर लिया ना शांति से तो नहीं होता, बहुत झगड़े होते हैं उसमें भी, बहुत गुस्सा होता है, बहुत फाइट्स होती है। But again, at the end of the day, if you're transparent to each other and just communicate and be loyal, I think कुछ भी हो जाए तुम्हारा रिलेशनशिप वर्क होना ही है। तो कृति अपन ये 3-4 चीजें बड़ी क्लियरली आंचल हम लोग को बता रही है। एक तो है ट्रस्ट, दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, तीसरा है लॉयल्टी और अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? I think it's a fair assessment, Monica. You're absolutely bang on. और मतलब understanding
द होल सिचुएशन कि हाँ हमें टाइम लगेगा, उसको भी सेटल होने में टाइम लगेगा, आपकी खुद देयर इज अ लॉट ऑफ एंजाइटी दैट यू वुड बी गोइंग थ्रू लाइक यू शेयरिंग, राइट? एंड द सिमिलर एंजाइटी आई थिंक if we give a little bit of thought around कि जितनी एंजाइटी आंचल को फील हो रही है उतनी उसको भी फील हो रही है, राइट? और वो भी उस चीज को नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है. ही वुड ऑल्सो फील दैट पुल कि यार मैं 2 साल की रिलेशनशिप छोड़ के आया हूँ, मुझे भी मन कर रहा है बात करने का आंचल से, so I think कि having that as a subconscious thought that he is also putting in that effort, and I think it shows in the little fights that you pick, in just being यार दो लोगों को communicate करना पड़ेगा ना लड़ने के लिए भी. I think that is also important. So sometimes we just have to change a little bit of our perspective कि ये है present, इसमें भी ये मेहनत डाल रहा है इसमें और मैं भी मेहनत डाल रही हूँ. And I think that subconscious thought can actually take you forward and keep driving this forward in a long way. So that's where my head was at. थॉट रियली मैटर्स कि तुम क्या सोचते हो. बिल्कुल. अगर तुम पहले से ही गलत सोच के बैठ रहा एंड तुम्हें अपना माइंड बनाना नहीं है कि भाई नहीं अब तो कुछ नहीं होना है, कर देते हैं ब्रेकअप, तो हाँ. फिर तुम कितना भी ट्राई करो बिल्कुल. कुछ नहीं होगा. मतलब इफ यू आर रियली लीन टुवर्ड्स नो दिस वोंट वर्क, आई वांट टू ब्रेकअप, तो बिल्कुल. फिर कुछ नहीं होता है. फिर तो आई थिंक ट्राई करके भी देयर इज नो पॉइंट, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ओनली. तो अभी तुम्हारा रिलेशनशिप कहाँ पहुंचा आफ्टर कंप्लीटिंग नाउ 1 year ऑफ 1 लॉन्ग year. डिस्टेंस? तो अभी भी प्यार वैसा ही है जैसा पहले था? यस, आई वुड नॉट लाई. देखो मतलब बहुत फाइट हुई है, काउंटलेस, की छोटी छोटी बात पे वो ओवर थिंकिंग होती है ना कि यार. एंड लेटली अभी तो 12th का जैसे वेकेशन होती है सबको, 3-4 महीने की ब्रेक होती है, तभी बहुत ज्यादा दोस्तों से मिलना हो जाता है, बहुत ज्यादा घूमना हो जाता है, बहुत पार्टीज होती है, तो वो भी मैं जाती हूँ तो भी ही रियली गेट्स वरिड. एंड हमारा ऐसा है ना कि हमने जब वो मूव हो रहा था ना यहाँ से, हमने तब बोला था हर 2 घंटे में वी विल टेक्स्ट ईच अदर. वो तो खैर लेट्स बी ऑनेस्ट हुआ नहीं कभी, बिकॉज एज सेड हम दोनों बहुत बिजी हो गए थे, पता नहीं कहाँ टाइम जाता था हमारा. एंड बोर्ड्स आ गया, उसके भी एग्जाम्स थे, तो कुछ ये 2 घंटा वाज अ वेरी दिस थिंग. पर हमने ऐसे तो बनाया कि wherever we are going we need to update, we need to inform किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं. मतलब होता है वो, इट्स नॉट लाइक इट इज अ कंट्रोलिंग बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड, बट वो एक हक होता है फॉर द बॉयफ्रेंड टू नो एंड फॉर द गर्लफ्रेंड टू टेल एंड सेम वाइस के ऊपर एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि see, I mean, it seems like when you guys were very close to each other, you were seeing each other every day. तो आप एक स्कूल गोइंग चाइल्ड का अगर आप दिन सोचो तो 4 बजे तक तो आप घर ही आ रहे हो खाना पीना करके. Then you probably have some tuitions, you have your own study to do, and then you have some time to meet this person, right? So your day-to-day routine kind of moves like that. And in that whole thing, I mean, you also have other friends. आपके स्कूल में friends होंगे, बाहर friends होंगे, which when you get into a very early relationship, Anchal, this is my perception, could be completely wrong, but your friends start to alienate because आप ही alienate हो जाते हो. आपको वही company अच्छी लगने लगती है, which is absolutely understandable. So how were your friends throughout this journey? क्योंकि I think there is also this element कि जब long distance हो गया तो वो तो दूर है and कभी कभी approachable है, but जो आपका circle जो यहाँ पे अभी भी है, how has that support been for you? Did you make sure that you were still in touch with your friends and have those friendships? Like, यहाँ पे क्या support रहा तुझे? बिफोर हमारा मतलब मैं इतनी सोशलाइजिंग नहीं थी, बट देन व्हेन अक्षत लेफ्ट फ्रॉम हियर तब आई गॉट मोर क्लोज टू माय फ्रेंड्स. बस मेरे 2-3 अच्छे खासे दोस्त हैं, 5 मान लो, एंड बस उनके साथ फिर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने हुआ. बट तभी भी हम इतना नहीं रहते थे बिकॉज आई यूज्ड टू स्टे at other side of Mumbai and they used to stay very far, मतलब घंटे का Okay. distance. तो इतना हम कॉलेज में मिलते थे, कॉलेज के बाद घर जाते थे बिकॉज हम बहुत थक जाते थे एंड घर पे जाकर पढ़ना भी होता था. तो जब बट देन एज सून एज माय बोर्ड ओवर, तब हम इसके साथ मतलब दोस्तों के साथ बहुत क्लोज हो गई मैं. एंड इवन अक्षत नोज माय फ्रेंड्स रियली वेल बिकॉज अक्षत
मिल चुका है मेरे दोस्तों को, और हम एक ट्रिप पर भी जा चुके हैं साथ में, 1-2 दिन का ट्रिप। तो वो जानता सबको है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि इफ आई मीट माय फ्रेंड्स तो उसको प्रॉब्लम है या कुछ। एंड हाँ, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस हुआ तो आई गॉट क्लोज टू माय फ्रेंड्स, एंड अभी भी 3-4 महीने की छुट्टियों में काफी ज्यादा क्लोज हो गई मैं, एंड काफी ज्यादा मिलना हो गया दोस्तों से। एंड या एक्चुअली इट इज अ ग्रेट बॉन्ड विद माय फ्रेंड्स राइट नाउ, एंड टच वुड, आई जस्ट होप इट नेवर गेट्स क्वाइट थिंग। या बिल्कुल बिल्कुल। और टिपिकल फ्रेंड्स को भी आप जानते हो सॉरी, अच्छे यस, से। साथ के फ्रेंड्स को भी, यस। Very nice, very nice. I think the other thing that I just want to maybe ask is, what is your advice to girls and boys of your age? You know, maybe even two things. One, looking for love at this age. Is this good? Did you find it easy or hard to navigate alongside your studies? And number two is कि अगर उनका situation ऐसा होता है कि long distance relationship हो, तो in a summary आपकी क्या advice होगी? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली आजकल की जेंजी को ये बहुत लाइट, ये ऐसा चीज बना दिया है कि दे हैव जस्ट मेड अ हॉबी और जस्ट डेटिंग, और बस उनको कुछ नहीं मिल रहा तो चलो कर लेते हैं डेट, क्या होगा, मजा आ जाएगा, 1-2 महीना रहेंगे साथ, देखेंगे, मतलब ऑल दैट थिंग्स। बट मेरा यही था हमेशा से फ्रॉम डे वन, एंड नेवर गॉट इनटू लव। ठीक है, इसके पहले मुझे कभी प्यार नहीं हुआ, मेरा कभी ऐसा बड़ा हार्ट ब्रेक नहीं हुआ था। एंड सेम गोज फॉर अक्षत, आई एम हिज फर्स्ट लव, ही इज माय फर्स्ट लव। तो हम दोनों बहुत फ्रेश थे, एंड हम दोनों को खुद नहीं पता था क्या करना है इनिशियली ये रिलेशनशिप में, कैसे जाना है। और यू नो वी वर आल्सो कि ठीक है, वी आर न्यू, वी विल मैनेज, बट वी आर न्यू, वी डोंट नो, बट वी गॉट इट आउट टुगेदर। बट लोग हमारे जनरेशन में, एज में बहुत गलत चीजें करते हैं, दे जस्ट डेट फॉर टाइम पास एंड बोलते हैं नहीं यार अब वर्कआउट नहीं हो रहा, चलो ब्रेकअप करते हैं। एंड even people who are really serious for each other, but then when they get to know that one of the partner is moving or is going into long distance, तो भाई उनकी तो फट जाती है और वो कर देते हैं ब्रेकअप। एज आई सेड अर्लियर आल्सो, लॉन्ग डिस्टेंस होता नहीं है, दे से ब्रेकअप। Yeah. एंड ऐसा नहीं चलना, एज आई सेड टाइम दो रिलेशनशिप को, पहले देखो अगर रिलेशनशिप वर्कआउट हो, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के बाद भी चल रहा है, तुम दोनों खुशी से रह पा रहे हो, 2 बातें शेयर कर रहे हो दिन की, तो आई थिंक कुछ गलत नहीं है। बस लॉयल्टी का दिक्कत होता है कि भाई व्हाट इफ वो मेरे साथ लॉयल है बट वहां पे तो कुछ कर रहा होगा किसी लड़की के साथ, हु नोस। दैट्स ट्रू, ये हम मुझे और अक्षित को दोनों बहुत लगा था में हुई थी। ये बहुत फ्रेजाइल चीज है, बट या व्हेन दे मतलब लॉन्ग डिस्टेंस स्टार्ट में था ब्रेकअप, लॉन्ग डिस्टेंस को टाइम दो, अगर तुम 2 बातें शेयर कर रहे हो, सब कर पा रहे हो दिन में शांति से, एंड फाइट्स भी हो रही है तो भी चलेगा। ये लोग सोचते हैं फाइट्स हो रही है, भाई बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है, छोड़ो, नहीं करना, इससे बेटर वी लिव अलोन, वी आर सिंगल, इट्स बेटर, कोई दूसरी ढूंढ लेंगे, ऑल दिस थिंग्स। बट ऐसा नहीं होता, यू हैव टू, देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, यू ऑलवेज हैव टू गो थ्रू शिट, टन्स ऑफ शिट बिफोर having a great life, a successful life। तो उसके लिए थोड़ी तो हार्ड वर्क जरूरी है यार, मतलब सब हार्ड तो नहीं मिल सकता। सारा बात है यार मोदी, ये छोटे सत्य बताओ यार, ये कैसी बातें कर रहे हैं। अभी मोनिका, तेरी मेरी क्लैरिटी कहाँ थी यार इस एज में? they are so I'm so intrigued by their clarity of having a relationship. I remember जब I was into a relationship, इतनी clarity थी ही नहीं, पर इन बच्चों को आज इतना सब पता है। And thank you so much आंचल for sharing all these insights, because I'm sure जो लोग सुन रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट, टाइम, ट्रांसपेरेंसी कितनी ज्यादा जरूरी होती है। नहीं कृति, डोंट यू थिंक अपना भी वाइंड अप का टाइम हो रहा है? कृति, रैप अप करना चाहेगी? I think so. I don't want this to end, Monica, but I'm sure that we'll get more opportunity to catch up with Anchal and one thing, Yeah. कि मतलब अगर
टाइम देने के बाद भी तुम्हारा रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, कुछ भी गड़बड़ आ रही है, सामने वाला टाइम नहीं दे रहा है, या यू आर जस्ट हॉट ओवर एंड ओवर इवन आफ्टर एक्सप्रेसिंग देम कि आई डोंट लाइक दिस थिंग, दिस एक्शन ऑफ योर्स, तो भाई तुम्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, चाहे करना कितना चाहिए। भी हार्ड हो रिलेशनशिप, हम्म। कितना भी हार्ड हो मूव ऑन करना, पर इफ यू आर नॉट हैप्पी एंड इफ द अदर पर्सन इज रियली overdraining you and overdraining your mental health and तुम्हें नहीं समझ रहा है, after repeatedly saying कि मुझे ये चाहिए तुझसे, why are you not giving, तो फिर it's time to actually wind up. भाई अपन को तो जल्दी ने लेटिंग गो की पूरी वो बता दी है, नो एक सही में। प्रोसेस बता दिया. इट्स सच इट्स सो इंसाइटफुल. आंचल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. यस प्रति, ओवर टू यू. नहीं, बिल्कुल. And so I think lots of nuggets during the whole podcast. And like I was saying, thank you, Anchal, for sharing with us this space. And यही है लाइफ में कितनी फेयरनेस है कि हम बहुत कोशिश करते हैं, एंड समटाइम्स इट मे टर्न अनफेयर कि हमें छोटे छोटे ऐसे मोमेंट्स दे देती है. but these are long learning curves. आपने कितना कुछ सीखा about your relationship, about all of these things. So let's treat it that way. I hope you and our friend go on to become like really great couple till the end of life. Our best wishes. Or thank you again so much. I just want to say to our I know. My pleasure in being this podcast. I had really a great time expressing and venting out my feelings, man ki baatein. So, that is what it becomes very therapeutic, Barbar, when you, and I keep saying it again and again, the more you talk and more you kind of relive those beautiful moments, Yeah. it works like a therapy, Yeah, it works truly. like really walking the same lane and, in a different feeling altogether. जब हम लोग वहां पास में होते हैं तो कितनी बार हम लोग शायद एंजॉय नहीं कर पाते, और अभी जब हम बात कर रहे थे तो हम ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं. Yes, agreed, very 100%. So it's just so beautiful. Thank you so much, Achal, for No sharing worries, your my pleasure. such emotional conversation with Yes. us. And Jati, thank you so much for joining us as well. No, it's my pleasure always. Wind up karte hain, so just a note to our listeners that if you found something that you learned from this podcast and you want to let us know your feedback in your comments, please do. बताइए हमें कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे बात सुनना पसंद है. अगर ये पसंद आया तो प्लीज शेयर करें आगे लोगों के साथ, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हमारे चैनल को, एंड कीप ट्यूनिंग इन फॉर मोर सच पॉडकास्ट. और हमारे YouTube चैनल मत सुनना भूलिएगा, बहुत ही उसमें भी हमारे सारे वीडियो लाइव जाते हैं. Yes.